Hello, good evening everyone. My name is Prince and welcome to another video on market discussions. आज 26 ऑफ जून थी, मंथली एक्सपायरी थी 5 इंडाइसेस की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। एक ओवरव्यू अगर आप लेंगे तो निफ्टी 300 पॉइंट से भी ज़्यादा पॉजिटिवली क्लोज हुई है 1.2% मूव करके। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट पॉजिटिवली बंद हुई है 1%। निफ्टी नेक्स्ट 50 0.92, मिड कैप 0.6% और सबसे ज़्यादा आज मूव करने वाला 1.5% जो था फिन निफ्टी। आज दो इंडाइसेस ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए, जो कि था बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। ये दोनों ही इंडाइसेस ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए। अब इतने ज़्यादा मूव के बाद क्या आप इसको पकड़ सकते थे अगर आप यूट्यूब की वीडियोस को या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होते? तो आंसर है क्लियरली हाँ। आपको पता होगा कि मैं बहुत दिन से आपसे बोल रहा हूँ कि बी बुलिश, और इनफैक्ट कल की वीडियो में मैंने बिल्कुल आपको वो लेवल्स बताए थे कि अब मैं कहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी को कल जाते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी और मैंने आपको तीन चीज़ बताई थी। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, आप जाके इसी यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स देखिएगा। मैंने इनफैक्ट उस क्लिप को डाल के शॉर्ट भी डाला था और मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया था कि अगर आप देखेंगे तो आपको एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको दिख रही होगी डबल बॉटम पैटर्न, और तीसरा आपको दिख रहा होगा राउंडिंग बॉटम पैटर्न। मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर चार्ट पे बन रहे हैं, तीनों के तीनों बुलिश हैं। ऐसा नहीं कि एक बियरिश हो और दो बाकी, तीन के तीन, 3 out of 3 पैटर्न्स दैट वर बीइंग फॉर्म्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी वर बुलिश। सो डेफिनेटली यू, मतलब यू इन मार्केट्स, इन स्टॉक मार्केट, you work on probability. You may be wrong, but ultimately if you're following what the probability says, then ultimately out of 10 times, 7 times you would be in profit. And that is how you work in the market. You cannot be 10 on 10 times correct. Okay, but you work on probability, and the probability in Bank Nifty was clearly telling us that a trend line is there and 3 bullish patterns were made. So minimum what Bank Nifty would move is to come and touch this trend line. So that is still not achieved because that target was 57,400, but today the highest point was 57,300. So a little short of that, just 100 points. Alright, despite moving 600 points. That is it. Now I just want you to have a look at the thumbnail that of the video that I uploaded yesterday. Okay, this was for 26th of June. Alright, and it said monthly expiry big green candle. Okay, and then I mentioned two levels, one of Nifty and another one for Bank Nifty. I'll just write it here. Nifty I wrote, sorry, this should be 25, I'm really sorry. So this was 25,600, and Bank Nifty I mentioned 57,400. Alright, I'll just write it here and let's try to match whether we are close to it. So this is the closing. I'll write it here at what point they close. Nifty close at 25,550, Bank Nifty at 57,206. Alright, so how far are we from these targets? In Nifty, it's the delta is nearly 50, but only 50 points short of the target that I mentioned. And in Bank Nifty, it's around 200 points. Now, this 200 points is for a reason that the highest value that Bank Nifty went today was 57,300. So, which lies 100 points short of that. But yes, after moving 600, like if you can capture 600 points out of the 800 points that I mentioned, you have actually covered the maximum of the points. Alright, so you would be in profit. So yes, that is how I read the markets, and if you have confidence in it, I think you would have made money. Alright, so this is the first thing. Now about the green candle, yes, see how beautiful the candle looks on the daily time frame, and given that it has closed at the day high, this means the strength of the buyers is not over yet. The buyers have not yet packed their bags and they are ready to push the markets up further. And given the fact that just 2 months before we were falling continuously for 6 months when the rest of the markets in the world were making their all-time high, and we were literally 10 to 12% down. We were literally going down when the world market, the global markets were making their all-time high. Now that we have our chance,
when the global economies are showing the signs of recession. Like you would be aware that today in the evening, uh, the GDP data of US has been published, and for the consecutively second quarter, the GDP data has shrunk. So, according to the technical definition in economic terms, if an economy is getting a shrunk GDP for two consecutive quarters, that means you're like by definition you are in recession. Although that shrunken GDP is like 0.2%, so that's on practical purpose on ground, nothing matters. But yes, by definition, US is under recession. But versus when our GDP data was published, it was really good. In fact, the economists expected some value X, and our GDP data turned out to be even positive. Okay, the more positive than that. So we are actually the inflation is controlled in India. The GDP data looks good. The government is giving, bringing out schemes, pushing different sectors. So by every means, our our GDP, no, I mean our economy stands at a position where we should be making all-time high when the global markets would now go down. And when the global markets do not look strong, you just imagine you have 10 options to invest in, and one looks very strong versus the rest of them, somewhere or the other are dwindling to give you, very good confidence. You would definitely, invest more of your money and the more share of your money in such a market. And India right now is that market. So why was I very confident that our markets would be giving a bullish breakout? Because of the same reason. When you need to read charts, plus you need to combine it, you need to add it with the global news that's going on, plus the GDP performance, everything combined, put all the masalas inside, and then you get a dish. Exactly. That's how you predict the movement of the market. You get the charts, you read the charts, you put all the news in, and then you decide. Probability again, you work on the based on probability. Whether it works out or not, that's a different thing. But if you work on proper lines according to probability, then out of the 10 times, 6 to 7 times you would be, the market would move like that. And that's what we just want. Now what do we see further in our markets? Now let me start with Nifty itself. The highest value, the Nifty is traded was around 26,300. Somewhere it was 26 to 60 to 80. I don't know. Just let me take a round figure, 26,300. Now where do we stand? 25,550. Imagine 25,600. So we have 800 points move. Now from these many days, I was telling you that what was my target in Nifty was 25,500 to 26,300. Exactly the highest point. Now why highest point? See, the Nifty would be moving till the highest point. यहाँ पर आके 26,300 पे आके it would be consolidating for around, if I'm not wrong, a week or so, like 200 points up, 100 points down, then 100 points down, 100 points up, like that. So a week or so would be spent like that. It would then come down. Come down to what level? Again, 25,800 to 26,000. So that means 600 to 700 points, the Nifty would be reversing. Now, that isn't a fall or selling. When you move 2000 points and if you come back 200 to 300, that's like, climbing the stairs. When you climb 10 steps and then you come down to 2 steps. That's where the bulls gather their momentum. कि भाई आपने एक बार पुश किया है बहुत ज़्यादा, आपने पूरी सांस लगा के पुश कर दिया, एंड देन यू लॉस्ट योर एनर्जी, तो आप 2 कदम पीछे आते हो एंड देन यू अगेन पुश, you gather your energy and then you start pushing again. So that is what I mean. So now be prepared for one thing, that like if you can trade till 26,400, like 26,300 level, you still got 800 points to go. Try to capture that. Thereafter, if you're confident that the Nifty would be coming back, then be on the P side, then again you will get 800 points. So like that you will have 1500 to 1600 points in Nifty. You still have that thing before we make another new all-time high. It would come back here 26 and then it would reverse again, and then I see levels like 27,000 to 28,000, and by the year end it would be somewhere around 29,500 to 30,000. That's on chart. And I also would like you to go in the shorts section of this YouTube channel, of my YouTube channel. There
few days ago, I think some 20 days ago. No, on exactly, I remember the date. On 1st of June, I have uploaded one short where I have analyzed the data, like the chart of the Nifty, and at that point, I said that in the coming days, Nifty would be around 25 600, and today that level has been reached. Now, Bank Nifty made today all time हाई, एक नया अपना ऑल टाइम हाई बनाया है, एंड दैट इज अ गुड थिंग. अब निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो निफ्टी फ्यूचर इनफैक्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि ये मूव अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है. आज इसने 2 लेवल का ब्रेकआउट दिया है. आप बहुत क्लियरली चार्ट पे अगर आप देख पाएंगे, एक लेवल ये है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और आज एक ही कैंडल ने इतनी सॉलिड ग्रीन कैंडल है कि इट हैज क्रॉस्ड बोथ द रेजिस्टेंस लेवल एंड इट हैज गिवन ब्रेकआउट. निफ्टी स्पॉट ब्रेकआउट दे चुका था, बट निफ्टी फ्यूचर ने आज ब्रेकआउट दिया है. एंड मोटा मोटा आपको एक अगर अंदाजा ना हो तो मैं आपको बता दूं, निफ्टी फ्यूचर इज व्हाट पुल्स निफ्टी स्पॉट. निफ्टी स्पॉट नहीं खींचता है निफ्टी फ्यूचर को. जो फ्यूचर में ट्रेड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग निफ्टी स्पॉट मूव करता है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स फॉर एवरी सेगमेंट, एवरी इंडाइस, एवरीथिंग. आज निफ्टी फ्यूचर में आपको मिला है ब्रेकआउट. अब इंपॉर्टेंट क्या है जो अपन हमेशा से बात करते हैं कि व्हाट रूल डू बी फॉलो. पहली चीज कि आफ्टर द मतलब यू शुड बी गेटिंग अ ग्रीन कैंडल. ठीक है, ग्रीन कैंडल एज ब्रेकआउट. ठीक है, तो आज अपना ये सब पहली चीज फुलफिल हुई है. ठीक है, प्लस इक्वली इंपॉर्टेंट क्या होता है, अ सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल. ठीक है, अ सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल. तो अब ये सपोर्टिंग ग्रीन कैंडल कल आती है या नहीं ये मैं नहीं बोल सकता हूँ. ऑल्दो अभी वील एनालाइज द DII द FII डेटा फॉर टुडे. उसके बेस पे वी कैन हैव एन इंटेलिजेंट गेस. आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं, एंड लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट टुमारो. एज ऑफ नाउ यू वुड बी इन प्रॉफिट, बुक इट एंड जस्ट वेट फॉर अ लिटिल व्हाइल, वेट फॉर अ लिटिल डिप. जब भी निफ्टी 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट गिरेगा, वो लाजमी है. जब 1000 2000 पॉइंट मूव करता है तो वो नीचे आएगा. उस टाइम पे फिर एक बुलिश पोजीशन बनाइएगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशन. अब आज क्या हुआ है, वी हैव अचीव्ड दिस थिंग. नाउ दिस थिंग इज येट टू गेट. ठीक है, वी आर येट टू गेट दिस थिंग. ठीक है, क्वेश्चन मार्क. अगर ये चीज हो जाती है, इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल टुमारो इन निफ्टी, आप अगले 800 पॉइंट के लिए बिल्कुल आप बुलिश एक ट्रेड ले सकते हैं. एक पोजीशन ट्रेड बनाइए अगले हफ्ते की या उसके अगले हफ्ते की, और आप उसको पकड़ के रख सकते हैं. ठीक है, उसमें आपको होना चाहिए प्रॉफिट. ठीक है, अगर कल एक रेड कैंडल आती है या डोजी टाइप कैंडल आती है, इनडिसिसिव कैंडल आती है, देन आई वुड सजेस्ट यू टू वेट फॉर अ डे और टू. एक डिप मिलेगी, वो भले कल ना आए, परसों ना आए. अब कल है फ्राइडे. ठीक है, और उसके बाद रहेगा मंडे, ट्यूसडे को रहेगी सेंसेक्स की एक्सपायरी. एंड आई सपोज कि अगर कल एक ग्रीन कैंडल नहीं मिलती है अपन को, ठीक है, या तो बहुत पतली सी कैंडल डोजी कैंडल मिले या एक रेड कैंडल मिलती है, वेट टिल ट्यूसडे. ट्यूसडे तक मार्केट एक डिप देगा, और उस ट्यूसडे पे देन वी विल एंटर लॉन्ग अगेन. कहाँ तक, 26,300 से 26,500 तक. उसके बाद अपन बुक कर लेंगे पोजीशन और वहां से वेट करेंगे वापस 26,000 आने का. और जब 26,000 आएगा फिर अपन 1 महीने या 2 महीने बाद की कॉल पोजीशन लेंगे और उसको आराम से होल्ड करेंगे 27,000 27,500 तक के लिए निफ्टी के लिए. ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक फॉर टुमारो. ठीक है, आई हैव मेंशन्ड कि अ ग्रीन सपोर्टिंग कैंडल इज येट टू बी फॉर्म्ड. ये फॉर्म होती है, आप इमीडिएटली एंटर करिए, वरना फिर वेट करिए. ठीक है, ये रही निफ्टी फ्यूचर की बात. अब पहले चलते हैं कि ग्रुप पे क्या डिस्कशन रहा था, उसके अकॉर्डिंग फिर विल सी. ठीक है, तो कल एक मार्केट क्लोजिंग कल शाम को, सॉरी दोपहर में, जब ये बना रहा था तो फिर मैंने एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी थी और एरो बनाया था कि इसके ऊपर वी डू गेटिंग अ गुड मोमेंटम. आज सुबह मार्केट खुला एग्जैक्ट उस लेवल पे खुला, वो नीचे आया, उसका सपोर्ट पकड़ा जो कि बहुत जरूरी था. अगर बिना सपोर्ट के ऊपर जाता तो वो कितना ही ऊपर जाता नीचे ही आता, बट क्योंकि वो उसका सपोर्ट लेके गया था, गैप फिल करके गया था, वहां से फिर कैंडल काम करती है लॉजिक पे. और लॉजिक ये बोलता है कि अगर आपने गैप फिल कर दिया, सपोर्ट ले लिया है प्रॉपर, तो फिर आप एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकते हैं. वही चीज हुआ, मैंने उसको अपडेट किया. ब्रेकआउट ऑन कार्ड शुड रीच 25,509. देखिए क्लियरली सुबह 9:15 बजे का मैसेज है कि 25,509 होना चाहिए. ठीक है, ऑल दो आज मंथली एक्सपायरी थी और उस चीज के मैनिपुलेशन के चलते ये चीज नहीं भी हो सकती थी, बट अगेन यू वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी, ऑन द लॉजिक व्हाट यू आर सीइंग ऑन चार्ट्स. ठीक है, अब देखिए पहली कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी, इसने 25,333 जो एक रेसिस्टेंस लाइन थी उसको क्रॉस किया. ठीक है, एंड आई क्लियरली मेंशन्ड एट 9:30. देखिए सेम रूल कि जस्ट वन सपोर्टिंग कैंडल एंड बूम. ब्रेकआउट आ गया था इस कैंडल पे, बट मैंने क्या लिखा, वन सपोर्टिंग कैंडल इज नीडेड. एंड सेम लॉजिक जो मैंने भी आपको निफ्टी फ्यूचर में समझाया कि ब्रेकआउट होना एक अलग चीज है, बट उसके साथ एक सपोर्टिंग कैंडल मिलना जरूरी है.
ठीक है। ये 9:30 का मैसेज था, ठीक है। वो एक डोजी टाइप कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। फिर ओआई का डेटा मैंने एनालाइज किया था और ओआई का डेटा ये लिखा था कि 25,600 की पुट राइटिंग स्टार्ट हो गई। पुट राइटिंग का मतलब होता है कि सेलर्स जो है वो सेल मतलब बायर्स है, मतलब इट्स बेसिकली अ बुलिश सिग्नल। मैंने वही लिखा था कि पुश मार्केट्स अपवर्ड एंड शॉर्ट कवरिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। अगेन पुश मार्केट अपवर्ड, ये भी स्टार्ट हो गया है। सो डबल वे मार्केट्स आर बीइंग पुश्ड अपवर्ड्स। ये है मैसेज 10:08 का, ठीक है, सुबह 10 बजे की। एक दिख रहा था लंबे 25,600 पे दिख रहा था, वहां पे तो मार्केट में फाइट चल रही थी 24,000 के आसपास, और सॉरी 25,400 के आसपास। बट 200 पॉइंट दूर का डेटा ये दिखा रहा था कि वहां पे सेलर्स आउट ऑफ द सिस्टम जा रहे हैं और वहां पे बुलिश ट्रेड बनाई जा रही है। तो जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो आगे का मोमेंटम बनाते हैं, क्योंकि आप फंसे रहते हैं 400 के आसपास सीपी। वो जो बड़े वो होते हैं वो फिर ऐसे एक्सपायरी के दिन ऐसे मूव लाते हैं कि 100-200 पॉइंट सीधा मूव होता है और उनकी प्रीमियम डबल ट्रिपल हो जाता है, उस टाइप का। तो इसलिए वो ओआई डेटा एट द सेम टाइम एनालाइज करना जरूरी होता है, ठीक है। अब फिर अचानक से सेलर्स एंटर हुए, ठीक है, चीज नीचे आई। बट देन आई रोट कि आई फील दैट दिस इज अ हायर हाई एंड हायर लो स्ट्रक्चर ऑन द चार्ट, मींस नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ बाइंग विल टेक निफ्टी टू 24,000। अरे आई एम अगेन एंड अगेन स्टक एट 24,000, सॉरी दिस शुड बी 25,500, ठीक है। आई अगेन मेंशन कि हायर हाई। और अच्छा, उसके बाद आई लुक्ड एट एनालाइज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी वाज टोटली साइडवेज, कोई मोमेंटम नहीं था इसमें, ठीक है। मैंने लिखा था बैंक निफ्टी में आएगी भयंकर बाइंग। अब ये क्यों लिखा था, एक्चुअली ये ओआई डेटा था, मैंने मेंशन भी किया था आएगी भयंकर बाइंग, ठीक है। भयंकर मतलब एकदम भयंकर। ओआई डेटा कुछ इस तरह से बिल्डअप हो रहा है, सेम थिंग जैसे निफ्टी में हो रहा था। बैंक निफ्टी में अचानक से ओआई डेटा बिल्डअप होना हुआ और वो इतना ज्यादा बुलिश डेटा बिल्डअप होके दिख रहा था। और क्योंकि आज एक्सपायरी थी, सिर्फ बैंक निफ्टी की नहीं फिन निफ्टी की भी, और मैं एक्चुअली फिन निफ्टी को ज्यादा मानता हूँ बुलिश साइड कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अगर अकेली हो ना, बैंक निफ्टी मूव नहीं भी करे, मुझे पूरा यकीन है नहीं करेगी। बट अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो वो चीज 100% मूव देगी, या तो डाउन साइड या तो अप साइड। और जिस तरीके का ओआई डेटा बिल्ड हो रहा था वो एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहा था, ठीक है। तो मैंने ये चीज मेंशन की। और ये कितने बजे की बात है, 10:34। मूवमेंट नहीं आया, यहाँ से एक स्ट्रैंड ऑफ सेलिंग आई, फिर मैंने लिखा अप फ्रॉम हियर, यहाँ से डायरेक्टली बाइंग आई, ठीक है। फिर मैंने एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा है 10:56 पे कि दिस मूव इज स्टिल पेंडिंग, होप इट कम्स इन टुडे। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आज मंथली एक्सपायरी होगी 5 इंडाइसेस की, तो वो मार्केट को साइडवेज कर दें और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको प्रॉफिट कराने के लिए, ठीक है। और मैंने ये लेवल भी मेंशन किया कि बैंक निफ्टी का करंट है 56,630। अच्छा, बंद कितने पे हुआ है, 57,200 प्लस। यानी यहाँ से यहाँ कितने पॉइंट मूव किया, आपको देखिए 400, 500, 600, 600 पॉइंट की रैली। मतलब इस मैसेज के बाद 10:57 पे ये मैसेज था, इसके बाद बैंक निफ्टी 600 पॉइंट मूव किया, ठीक है। अब और ठीक है, फिर मैंने 12 बजे एग्जैक्टली ये एक चार्ट था, निफ्टी एकदम साइडवेज हो गई थी, एक जोन में आ गई थी। बट ओआई डेटा अभी भी चीख चीख के ये बोल रहा था कि 25,600 पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, यानी एक मूव आ सकता है और आना चाहिए लॉजिकली अगेन। और इस टाइम पे चल रहा था 25,350, यानी यहाँ से अगला 200-250 पॉइंट निफ्टी मूव किया है, ठीक है। ये आया आपका 12 बजे 1 सेकेंड, ठीक है। अब मैंने ये चीज लिखी थी कि इफ एक्सपायरी मैनिपुलेशन इज नॉट डन, ठीक है, वी शुड रीच 25,500 टुडे, ठीक है। अब फिर अपना मूव आया और फिर बैंक निफ्टी में वो मूव जिसकी मैंने बात की थी 11:30 बजे, वो 12 बजे से स्टार्ट हुआ। यू शेप जिसका मैंने कल डाली थी चार्ट बना के कि ये यू शेप बना रहा है, और फिर राउंडिंग बॉटम का जब ब्रेकआउट होता है तो जो राउंडिंग बॉटम का जो डेप्थ होता है उसके बराबर मिनिमम ये चीज ऊपर जाती है, और वो 400 पॉइंट के लगभग था। और यहाँ से अगला 400 पॉइंट एग्जैक्टली 57,400 के लगभग आ रहा था, जहाँ की आज मार्केट ने आपको छोड़ा है, ठीक है। फिर एक बहुत शार्प मूव आया, बैंक निफ्टी ने पूरा कवर किया, जिसके कारण निफ्टी भी पुल हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि निफ्टी में 40% वेटेज है वो बैंकिंग स्टॉक्स का है, फाइनेंशियल स्टॉक्स का है, ठीक है। और फिर बस यही सारा अपडेट है। निफ्टी हुआ एक लेवल पे, जब निफ्टी रीच हुआ तो मैंने ये भी चीज मेंशन की थी कि बुक ऑल द सी पोजीशंस नाउ। आई पर्सनली बुक्ड माय सी पोजीशन एंड एट द सेम टाइम आई हैव मेंशन कि भाई बुक ऑल द सी पोजीशंस नाउ, नो एक्टिव ट्रेड हियर आफ्टर, ठीक है। उसके बाद ऑल दो जो निफ्टी है वहां से 50 पॉइंट और मूव किए, बट आपको एक चीज समझनी होगी कि एक्सपायरी वाले दिन लगभग 3 बजे से
मूव नहीं, मतलब जो प्रीमियम है वो मूव नहीं करते हैं। और अल्टीमेटली जहाँ पे प्रीमियम्स बंद हुए हैं, जिस पॉइंट पे मैंने बुक कॉल द सी बोला था, 2 बजे से 3 साढ़े 3 1.5 घंटे बाद भी प्रीमियम्स वहाँ से मुश्किल से 10 से 12 पॉइंट ही मूव किए हैं। तो आपको जब एक बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस लेवल के पास आपका इंडाइस पहुंच गया है, तो वहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे बुक करूँ, क्योंकि एक रेसिस्टेंस लेवल के पास जब इंडाइस पहुंचता है तो वहां से शार्प सेलिंग का भी एक मौका बनता है। तो यू नीड टू बुक द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड रादर देन स्पेक्यूलेटिंग एवरीथिंग। तो आप बुक करो वहां से 10, देखो आपने जब 100 पॉइंट 200 पॉइंट कैप्चर किए हो, वहां पे आपको 10 पॉइंट के लिए वो चीज पूरा 100 पॉइंट रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड वही लॉजिक से मैंने आपको बुक करवाया। अब एक स्टॉक ऑप्शन कॉल है, एक स्टॉक है उसका कॉल ऑप्शन है, ये जुलाई सीरीज का है, जो कि 31 जुलाई इसकी वो रहेगी, 31 जुलाई तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट है 8500 का, ये एक्सपेक्टेड है 2 टाइम्स से 4 टाइम्स होने की, और इसमें रिस्क है 5500 रुपीज़ का। ठीक है, गए तो 5500 और आए तो आप मान लीजिए मिनिमम 17,000 और मैक्सिमम 4 टाइम्स अब इसका कर लीजिए लगभग 33-34,000 के लगभग। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो आप देखिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक दिस। और अब ये देखिए, जो कल मैंने जो ट्रेड दिए थे, लॉक कंटेंट दिए थे, वो क्या थे? 26 आज की स्पेशल एक्सपायरी के लिए, जो 26 जून के लिए मैंने निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड दी थी, इसमें पी, ये स्ट्रैडल था पी और सी दोनों साइड का। 135 इसकी कंबाइंड वैल्यू थी। हाईएस्ट वैल्यू तो इसकी 310 के भी पार गई है, बट ठीक है, आज इसकी मैं क्लोजिंग की वैल्यू शेयर कर देता हूँ। इसकी क्लोजिंग वैल्यू जो आई है वो आई है 300, यानी 135 आपका इन्वेस्टमेंट 10,100 के लगभग, और क्लोजिंग आई है इसकी 300। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका 2.2 टाइम्स, मतलब 2 से ज़्यादा ही हुआ है, तो आपका 10,000 का कैपिटल मतलब 20,200 तो हो ही गया। ठीक है, एक चीज़। और 20 तारीख को मैंने एक लिख के भेजा था कि 0-0 कॉल है, बैंक निफ्टी का रहेगा। उसकी उस टाइम पे जो वैल्यू, उस टाइम बैंक निफ्टी चल रहा था 55,770, और आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 57,200। कितना पॉइंट है? 300, 1000 और 1500 पॉइंट। बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट मूव किया है 6 दिन में, जब ये दिया था कॉल ऑप्शन उसके बाद। तो इसकी वैल्यू क्या थी? 130 पे दिया था, और आज 700 प्लस पे ये बंद हुए, 704 पे एग्जैक्टली। तो ये 5 गुना हो गया है। यानी कितना दिन हुआ है? 21 से आज 26 मान लीजिए, 5 दिन 6 दिन में ये आपका 5 टाइम्स मूव कर गया है। अब नाउ दैट इज अच्छा, और मैंने मेंशन 5 टाइम्स नहीं किया था, मैंने एग्जैक्टली मेंशन किया था कि ये 2x मिनिमम और मैक्स 4x के लगभग भी अपन को रिटर्न मिल सकता है, अगर मार्केट्स अपने उसमें कंड्यूसिव रहेंगे। और लॉजिक था वो कि 4 टाइम्स जाने का, कि अगर मार्केट्स अपने हिसाब से चल गए, और वो चल गए। ठीक है, नाउ दैट वुड हैपन, एक लॉजिक बनाया, प्रोबेबिलिटी थी जाने की, तो मैंने लिखा और वो चीज़ पूरी हुई। नाउ दैट इज नॉट दैट एवरी टाइम इट वुड हैपन लाइक दैट। आउट ऑफ 10 टाइम्स इफ दैट इज वर्किंग 6 to 7 टाइम्स, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, एंड गो चेक द हिस्ट्री इन द ग्रुप इटसेल्फ। Out of 10 times that I have given, 8 times to 9 times by God's grace, the things have worked out very perfectly. ठीक है, एंड दिस इज द स्क्रीनशॉट कि ये 704 पे आज बंद हुआ है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब बात आती है कि कल का क्या। अच्छा, पहले एक बार एफ आई डी आई देख लेते हैं। ये देखिए, ओ अच्छा, एफ आई ने आज 13,000 करोड़ की कैश में बाइंग की है, विच इज़ वेरी गुड। फ्यूचर्स में 5,000 करोड़ की बाइंग की है, विच इज़ अनदर वेरी गुड। और इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आज फिर 33,000 करोड़ की बाइंग हुई है, विच इज़ फैंटास्टिक। और जिस हिसाब से अपन करते हैं, अब देखिए दो चीज़ अपन को फिर दिखा रही है। एक तो अपन को ये दिखा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 100 पॉइंट्स प्लस है। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव, बुलिश। सेकंड, एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन जो है, एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं मिला देता हूँ कि निफ्टी के फ्यूचर जो है, निफ्टी फ्यूचर जो है, आज इसका ब्रेकआउट भी अपन को मिला है। ठीक है, वो भी दो दो लेवल का। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव है। नाउ यू कंबाइन 1 2 एंड 3, ऑल द 3 पॉइंट्स, द डेटा इज वेरी बुलिश। ठीक है, एंड आई सपोज जो अपना लेवल है 26,300 का इन निफ्टी, दैट वी वुड बी क्रॉसिंग। आज क्या 26 तारीख है ना, आप मान के चलिए जुलाई 10 के में कितने ट्रेडिंग डे होंगे? एक हफ्ते का ट्रेडिंग डे होगा। आप एक हफ्ते में वो चीज़ मान सकते हैं। बाय नेक्स्ट वीक अगर चीज़ें रिमेन वेरी गुड, तो अपन 26,300 पे खड़े होंगे, जो कि यहाँ से 700 पॉइंट है। तो हफ्ते मतलब 7 दिन या 8 दिन में 700 पॉइंट, यानी लगभग
90 से 100 पॉइंट हर दिन चलना, तो किसी दिन आप नेगेटिव रहोगे तो आपको किसी दिन 200 पॉइंट मूव करना पड़ेगा। तो आप मोटा मोटा हिसाब लगा लीजिए कि 15 जुलाई छोड़िए 15 जुलाई तक आप मान लीजिए अपन ऑल टाइम हाई पे होंगे। अब ये तब होंगे जब डेटा ऐसा ही बुलिश रहता है, नहीं तो जैसा मैंने बोला कि हो सकता है एक डिप आए पहले, ठीक है, और फिर डिप के बाद वो अपने ऑल टाइम हाई पे जाए। तो वॉट एवर इट इज, 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, टुमारो फ्राइडे एंड ट्यूसडे बीइंग सिंथेसिस एक्सपायरी। अगर 2 दिन तक ये जो फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे, अगर इस दिन तक आपको ग्रीन कैंडल, अगर कल ग्रीन कैंडल मिल जाती है तो आप 26,300 तक एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल एक ग्रीन कैंडल नहीं मिलती है, या अगर ग्रीन कैंडल होती है और डे एंड तक 1 बजे के बाद 3 बजे तक आपकी वो सेलिंग आ जाती है और वो आपको डोजी टाइप कैंडल दिखती है, तो फिर उसको आप बुलिश कैंडल नहीं मानेंगे, भले वो ग्रीन में क्लोज हो। अगर आपको ऊपर की विक बड़ी दिखेगी तो उसे आप सी साइड एंटर मत करिएगा, बुक योर सी पोजीशंस बाय डे एंड। I'll update in the Telegram group. There would be a scanner QR code on the right bottom side. You can see. Do scan it. Join the Telegram channel. Okay. And whatever update would be there, I'll share. Alright. Then let's have a look at Gift Nifty. गिफ्ट निफ्टी की अभी वैल्यू चल रही है 680, 25 680। ये बंद हुआ था 55,550 पे, यानी 130 पॉइंट्स, 130 पॉइंट्स ये फिर से पॉजिटिव है 3:30 बजे के बाद, विच इज़ वेरी गुड। अब क्यों है? क्योंकि भाई अपना यूएस के जो बाजार है वो एकदम बुलिश हो गए हैं, ठीक है। अब आप मान के चलिए, आप जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आपका जीडीपी डेटा 2 क्वार्टर से नेगेटिव आ रहा है, करेक्ट। आप टेक्निकल टर्म्स में आप रिसेशन में, उसके बाद आपका मार्केट बुलिश क्यों हो रहा है? देयर इज अ रीजन। अगर एवरीथिंग रिमेन्ड गुड ना, तो फिर गोल्ड, आपने देखा होगा गोल्ड का प्राइस भी आज गिर रहा है, क्यों? क्योंकि सेफ हेवन माना जाता है गोल्ड। अब क्योंकि आपका जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में है, इसका मतलब है योर गवर्नमेंट वुड बी गिविंग यू इंसेंटिव्स। वो आपको रिसेशन से बाहर निकालने के लिए पैकेज, कौन सा पैकेज बोलते हैं उसको, स्टिमुलस पैकेज देंगी गवर्नमेंट। तो स्टिमुलस पैकेज जब देता है तो वो कंपनीज के बेनिफिट के लिए होता है, जब कंपनीज बेनिफिट करेंगी तो स्टॉक मार्केट बेनिफिट करेगा। इसलिए आज आपकी अगर इकोनॉमी रिसेशन में आई है तो वो कल के लिए, कल इन द सेंस अगले महीने या जब भी आपकी गवर्नमेंट करेगी वो स्टिमुलस पैकेज को इंट्रोड्यूस करेगी, और स्टिमुलस पैकेज इज गुड फॉर द मार्केट। तो आज डेटा आया है कि आप रिसेशन में हो तो बुलिश मार्केट हो रहा है, अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। वो होना उल्टा चाहिए कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, बट आने वाले टाइम में जो स्टिमुलस पैकेट मिलेगा उसके बेनिफिट के लिए मार्केट बुलिश है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। Whatever would be there, I'll update in the Telegram channel. Do join it. And that's it from my side today. Wishing you good health. Good night. Bye bye.